Hello, everyone. On behalf of India Foundation for the Arts, welcome to our Project Showcase. As some of you know, India Foundation for the Arts, or IFA, is an organization that supports and implements projects in the arts and culture across the country. Over the past 26 years, we have made possible more than 700 such projects in various art forms and disciplines across various regions and languages of this country. The outcomes of these projects are out there as books, films, publications, exhibitions, productions, archival material for you to engage with. Today, but from time to time, what we also do is we like to share the work that our grantees and project coordinators do. And before the pandemic, we would organize these events across different cities in cahoots with our local partners. And we would welcome you to spend an evening with us, listen to these projects from the project coordinators, the artists, scholars themselves, and figure out how they are doing their projects, what processes they employ, what questions they are asking. However, from March 2020, we have taken this online, and now every month we come to you with one project. And these we share these projects in different languages that they are made in. Today is very special because we are going to share a project today which has come out of a very new category under our Arts Practice Program. The Arts Practice Program, as you know, is a program that supports practitioners in the arts across various disciplines like music, theater, visual arts, photography, you name it. But in 2020, we had a panel of expert evaluators who reviewed these programs. In IFA, like the project applications that we get, the proposals that we receive, which gets evaluated by experts from the field, we also look at evaluating and reviewing our programs every 5 to 8 years. And when the Arts Practice Project was reviewed by Justin McCarthy, Neelam Mansingh, Sanjay Kak, and Gitanjali Rao in 2020, what they did was they introduced a new category called explorations in our Arts Practice Program. Now, this category is supposed to encourage playing around with new ideas that are nascent, that may be risky, that may be unprecedented, which may or may not, these experiments may or may not lead to final artworks. They are much shorter in duration. Also, the budgets available for them are very small, 75,000 per project. And we were delighted that the first year itself, we had over 400 applications that we received under this category. So today we are going to share with you a project that we implemented under this explorations category of the Arts Practice Program. And I invite my colleague, John Xaviers, who looks after this category of the Arts Practice Program, to tell you a little more about our presenters today and the project that we will be discussing. Over to John. Thank you, Arundhati. So as Arundhati mentioned, this is the first time that we're having a project showcase with explorations category. And as Arun mentioned, explorations category is about playing around with ideas that are nascent, risky, or unprecedented. So today's presenter is Birender Yadav, who had an artistic collaboration with brick workers in Mirzapur. Birender Yadav is a Delhi-based contemporary artist who did his MFA from Delhi College of Art, and he has participated in the prestigious 12th Berlin Biennale curated by Kader Attia. And today's discussant is Alone, sir. Professor Alone is an art historian who teaches at the School of Arts and Aesthetics in New Delhi, and he's a professor of Buddhist art history as well as Ambedkarite visual culture. So recently he curated a show on Ambedkarite aesthetics in Kochi. So I invite Birender Yadav to make his presentation now. Yeah, just before Birender goes in, two things that I forgot to mention. One is that if you are not watching us on Zoom, please know that we are also going live on Facebook. So you can join us there or ask your friends to join us there. And we will have time after Professor Alone and Birender discuss. We are going to take questions from the audience. So please put all your questions in the Q&A box that you see below.
or you can put them out. If you're listening to us on Facebook, you can put it out there, and we will ensure that Birender and Professor Alone gets those questions to respond. Birender will be speaking in Hindi today, and we will be doing the translations both on the Zoom chat as well as on Facebook. So, Birender, over to you. Yeah, thank you, Joan Arundhati, for kind introduction. So I'm sharing my screen. My screen is visible? Yes, it is visible, but if you want to make it full screen, yeah, sure. View slideshow, please. Yeah, it's perfect. Yeah. ये प्रोजेक्ट मैंने 2015 में स्टार्ट किया था. उस टाइम में मैं कॉलेज में था, मास्टर प्रीवियस ईयर में था, और ये वर्कर से एक्सीडेंटली मैं मिला था बनारस में, जहाँ से मैं बैचलर किया था. और हम लोग लोकल लैंग्वेज, खोटा लैंग्वेज के थ्रू मिले थे, जो कि धनबाद में ट्राइबल यूज करते हैं. तो इनके थ्रू मैं ब्रिकलिन विजिट किया था, और उस टाइम से हम लोग एक स्टार्ट किए विजिट करना. फोटोग्राफ्स कर रहा था मैं. तो पहले मैं जैसे 2015 में जैसे गवर्नमेंट ने आधार कार्ड इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं फिंगरप्रिंट उसी पे रिसर्च कर रहा था कि गवर्नमेंट जो क्लेम कर रही थी इट्स लाइक अ यूनिक आईडी, बट ग्राउंड में जो एक इशू था, मतलब वो हॉट ब्रिक्स कैरी करते तो उनका फिंगरप्रिंट वॉश आउट हो जाता है. तो ग्राउंड में अलग अलग तरह का प्रॉब्लम था. तो उनको लग रहा था कि मैं गवर्नमेंट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो बोले थे हमारा आधार कार्ड बना दीजिए. इस तरीके से एक एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब 15 में. और फिर उसके बाद मैंने काफी 7-8 साल से चल रहा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है. ये प्रोजेक्ट भी उसी का पार्ट है, जिसमें ये जो ब्रिक फैक्ट्री है वो दुर्गा लेवल का ब्रिक बनाती है. तो मैंने ये जो दुर्गा पोर्ट्रेट सीरीज ब्रिक वुमेन वर्कर का डॉक्यूमेंटेशन था. ये पोर्ट्रेट सीरीज था दुर्गा का. This work is a satiric documentation of how the goddess metaphorically trampled down the most underprivileged every day. Ironically, the Brahminical goddess is always portrayed as trampling the asur under the feet. ये सारा मैंने कुछ 50s ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स किया था, जो कि जो ब्रिक वो कैरी कर रहे थे. जस्ट मैं दुर्गा जो ब्रिक का जो लेवल है उसको हाईलाइट करके ऐसे पोर्ट्रेट का सीरीज किया था, जैसे ये एग्जांपल्स हैं. ये वो ब्रिक कैरी करते टाइम उनका वो कट जाता है, तो टेप लगा के ऐसे यूज करते हैं. और ये क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम का प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये मानसून में ब्रिक किलिंग का काम नहीं होता है, मतलब बारिश में बंद हो जाता है. तो उस टाइम में मैं कुछ ड्राइंग डेवलप कर रहा था, जो कि साइट से मैंने जो डेटा कलेक्ट किया था. तो उसी टाइम का कुछ ड्राइंग्स थे, जैसे कि ये ब्रिक किलिंग में फर्टाइल लैंड को यूज करते हैं, मतलब वो पूरा जो एरिया है. तो इस तरीके से मैंने वो फर्टाइल ब्रिक्स ऐसे करके डिस्प्ले किया था. ये वो भी ब्रिक किलिंग का ही ड्राइंग था, मतलब वहां से. ये जो चिमनी है यहाँ पे, मतलब ब्रिक किलिंग में, क्योंकि मैं 7-8 साल से एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं देखा हूँ कि जितनी हाइट होती है ब्रिक किलिंग का, इसका मतलब है वहां पे उतना ज्यादा वर्कर है, मतलब ज्यादा, तो एक तरह से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है. तो इस तरह का मैं ड्राइंग कर रहा था, जो स्केच बुक से डेवलप करके. क्योंकि वो बारिश के टाइम में मैं वहां पे विजिट नहीं कर पाया था. 2 ही 3 महीने इस प्रोजेक्ट के लिए विजिट कर रहा था वहां पे. तो मैंने बहुत सारे ऐसे
कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट वहां से कलेक्ट किया था, उनके सामान इस तरीके से। बेसिकली आइडिया ये था कि वो जो जिस घर में वो रहते हैं टेम्परेली, उनका कंस्ट्रक्शन साइट पे ही वो रहते हैं, फिर एंड में जो साइकिल जब खत्म होता है ब्रिक किलिंग का, तो वो उस ब्रिक को भी सेल कर देते हैं। तो मैंने वो जो जो चीजें बची हुई थी वहां से, वो सब चीजों को कलेक्ट करके और उसको टेराकोटा में कास्ट किया था। मतलब आइडिया वही था कि मतलब हिडन लेबर, हॉन्टेड, रिकास्ट लाइफ को प्रेजेंट करने का। फिर ये जब हम लोग फर्स्ट टाइम मैं इस ये ब्रिक क्लीन वर्कर के साथ मिले थे, तो एक हमारा इंट्रोडक्शन ही ऐसा ही हुआ था कि मतलब ये लोग भी धनबाद से हैं, तो लेबर चौक धनबाद में है जो जो काफी फेमस है। मतलब एक उससे ये होता एक जगह का एक लैंडमार्क जैसा है। तो सब लोग अच्छा लेबर चौक से हैं आप, इस तरीके। तो हम लोगों ने मतलब एक आइडिया था कि ब्रिक किलिंग में भी मतलब ऐसे पब्लिक फिगर जो हीरोज हैं, मतलब वो मतलब पॉलिटिशियन और इनका देखते हैं, तो इसलिए मैं एक लेबर को मतलब उसी टाइम में ये एक फिगर वो कर रहा था। ये कुछ प्रोसेस का फोटोग्राफ्स है। ये वहां से जो मैंने कुछ रैग्स क्लॉथ्स कलेक्ट किया था। बेसिकली आइडिया ये था कि मैं जनरली वहां पे ब्रिक किल में ही फायर करता था, बट ये रेनी सीजन की वजह से कुछ ये सारा मैंने ये स्टूडियो पे ही डेवलप किया था। ये स्टूडियो का फोटोग्राफ्स, ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो ब्रिक किल का। ब्रिक किल में वहां पे हम बच्चों के साथ भी काम कर रहे थे। टेराकोटा का वर्कशॉप ऐसे करीब 4-5 साल से काम कर रहे। तो ये जो फैमिली है, ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये सब इनके फैमिलीज हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, तो मतलब हर मंथ, क्योंकि इनको लगता था कि मतलब क्ले मतलब सिर्फ ब्रिक बन सकता है, तो ऐसा एक आइडिया था कि उसी मीडियम में कैसे इंगेज किया जा सकता है बच्चों को। तो हम लोग ऐसे एक टेराकोटा का वो, क्योंकि वहाँ इजी होता था, फायर करना भी इजी है मतलब। ये कुछ फोटोग्राफ्स है, मतलब क्योंकि ये इनका जो पेमेंट सिस्टम भी है वो भी 1 वीक में पेमेंट होता है, तो ऐसे इनको कुकिंग करने के लिए ये गोबर का वो मिलता है। ये टोकन है जनरली, मतलब ब्रिकिल में यूज होता है, क्योंकि और ये टोकन से बाद में इनका जो, क्योंकि ये वीक के एंड में पेमेंट होता है, तो इसी से ये कन्वर्ट होता है लास्ट में जो ये सबमिट करते हैं, तो इनको मिलता है पेमेंट। ये वो कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहा था मैं, जो ये टेम्पररी वो बनाते हैं, फिर वो जब सीजन खत्म होता है उसको फिर से ये फायर होके फिर से ये सेल हो जाता है मार्केट। Thank you, Birender. Professor Alone, would you like to initiate the discussion, please? Yeah, thank you. Thank you, Birender. Thanks for a very crispy and a small presentation. Dhanyawad aapka. I begin by one simple question. The art school curricula is very ghettoized, because the places where you have studied, जहाँ पे आपने पढ़ा है, वहाँ पे एक ghettoized तरीके से पढ़ाया जाता है. When did you realize that that it is caging you and your thoughts? आपको कब ऐसा लगा कि वो आपको बंदिश बना रहा है, और आपके जो भी एक विचार है उसको आप वो उस थॉट प्रोसेस को वो
वो उसमें प्रबल नहीं पैदा कर रहा है? मैं बैचलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया था, और मैं मतलब आर्ट कॉलेज में आया ही था अपने फादर का प्रोफेशन में हेल्प करने के लिए। वो ब्लैक स्मिथ थे, माइंस में टूल्स बनाते थे वर्कर के लिए। तो जब मैं आया था मुझे लगता था कि मैं आर्ट कॉलेज करके उनको हेल्प करूंगा, मतलब एज ए डिजाइन इसमें। लेकिन जैसे मैं थोड़ा आर्ट को समझने लगा, फिर मुझे लगा कि मतलब इसका एरिया कुछ और है, जितना मेरा समझ हुआ। तो फिर मुझे लगा कि मतलब ये स्किल तो ठीक है, लेकिन स्किल के बाद की कुछ चीजें हैं जो मुझे करना है, जो मैं करना चाह रहा था। तो वहां से मेरा जो फोकस है वो इसकी तरफ जाता है। और फिर जब आर्ट कॉलेज में था, जैसे जो मुझे करना है, मतलब अब वो मतलब मैं, क्योंकि एक्सीडेंटली मैं इन वर्कर से मिला था और मैं इंटरेस्टेड था इस तरीके से इनके साथ कोलैबोरेशन में काम करने के लिए। और मास्टर में मैं उस टाइम में था, लेकिन मास्टर का सिलेबस ऐसा था कि आपको सेशनल चाहिए, 2 पेंटिंग चाहिए, ये चाहिए। और मेरा उस टाइम में इंटरेस्ट हो रहा था ये सब ग्राउंड में, मैं रिसर्च कर रहा था। तो क्योंकि ये मतलब थ्योरेटिकल नहीं हो सकता था, मतलब वो कोई डेटा नहीं है, मतलब ग्राउंड में ही जाके हो सकता था। तो मेरे को लगा कि अब ये एक टाइम था। से यहाँ पे एक अनिल कार्की का एक कविता भी है इसी पे, मतलब मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। मिस्त्री का बच्चा ढूंढता रहा मिस्त्री किताबों में, दुनिया के सबसे बड़े महलों मीनारों का इतिहास पढ़ता हुआ। तो ऐसा ही कुछ था मेरे को जो करना था, मतलब वो हिस्ट्री नहीं है, नहीं था उनका, मतलब जिस चीज के बारे में मैं काम करना चाह रहा था। तो वहां से मेरा ये थोड़ा फोकस ये हुआ कि मतलब कि थोड़ा इसके आगे जाके कुछ करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई लाइक टू आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू यू सी कास्ट एंड कम्युनिटी एंगल इन योर विजुअल प्रोजेक्ट? कि आप अपने विजुअल प्रोजेक्ट में कास्ट और कम्युनिटी एंगल जो है वो किस ढंग से देखते हैं? जब मैं ये ब्रिक किल में गया तो मतलब 90% जो वर्कर है वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और मुस्लिम्स हैं। और जितने ब्रिक किल ओनर है वो सारे हिंदू कास्ट से आते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब वहां पे मतलब ब्रिक किल में एक पूरा दूसरे कास्ट भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और ब्रिक किल में एक है कि मतलब कास्ट वाइज भी काम बटा हुआ है। मतलब जैसे ब्रिक किल में जो फायर कर रहे हैं, मतलब वो प्रतापगढ़ ये सब एरिया से आते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर कास्ट है। और जो मेकिंग का काम कर रहे हैं, जो मोल्ड से ब्रिक निकाल रहे हैं, तो वो राजभर कम्युनिटी है जो नॉर्थ इंडिया में जो लोकल है, जो मिर्जापुर के आसपास के, वो ज्यादा मतलब उसमें है। और ये जो भी हम दुर्गा पोर्ट्रेट का सीरीज देख रहे थे, जो औरतें सर पे लेके ब्रिक्स जा रही थी, तो वो रांची से हैं। वो लोग बेसिकली नॉर्थ इंडिया में मतलब ऐसा ही बोलते ही हैं कि वो रांची लेबर है। मतलब मैं बचपन से ऐसा सुनते रहा, रांची लेबर, रांची लेबर। रांची लेबर क्या है मुझे पता चला जब मैं ये फील्ड में काम कर रहा था। तो उनको रांची, बट वो रांची से ही सिर्फ नहीं है, धनबाद से भी है, इधर से आसपास के झारखंड से, मतलब ट्राइबल है। तो उनको लगता है कि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, तो उनको वो काम दिया गया, वो ब्रिक एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है सारा कम्युनिटी। एक बड़ा रोचक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आउट ऑफ सर्टेन क्यूरियोसिटी. When you titled your work, earlier work, Lakir Ka Fakir, which basically shows dismantling normative and inhibitions. How have you arrived at such themes? कि आपका जो पहला काम है इसके पहले का, जिसको आपने टाइटल दिया गया लकीर का फकीर, तो जो एक आपके नॉर्मेटिव को डिसमेंटल करता है, एक इनहिबिशन को डिसमेंटल करता है, और आप इस तरीके के मुद्दों पर या इस तरीके के थीम पर कैसे पहुंच गए? मतलब ये तो लकीर का फकीर भी ग्राउंड से ही आया था। मतलब कि मतलब वो एक बिलीव है, मान चुके हैं कि मतलब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, मतलब जो नसीब में लिखा है वैसे ही होगा। और
मैंने ग्राउंड में करीब 150 लोगों का इंटरव्यू किया था इसी के रिगार्डिंग। तो वो एक वर्क था, फोटोग्राफ्स था, वो पाम का फोटोग्राफ्स था, और मैंने वो फेट लाइन पे एलईडी फिट किया था, वो ब्लिंक करता है, और उसके साथ मतलब ऑडियो था। ये जो सारे लोगों से मैं बात किया था वो क्या समझते हैं, मतलब ऐसा। तो मतलब जैसे बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने इसको डिस्कार्ड किया था, सेम उसी तरीके से, जो कि एक ब्राह्मणिकल चीज थोपा हुआ है, मतलब। तो मेरा अप्रोच भी वैसा ही था, मतलब एक कैसे एक फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो सेम मैंने उसको विजुअल के फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया था, और टाइटल भी वहीं से आया था, क्योंकि एक्चुअल मीनिंग मास्टर ऑफ लाइन है, वो अपने काम में माहिर हैं, लेकिन फिर भी वो मान चुके हैं कि चेंज नहीं हो सकता है। तो मैंने वो सारा फोटोग्राफ्स किया था। अगला सवाल पूछना चाहूंगा, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ मटेरियल इन द एक्चुअल प्रैक्टिस, कि आपके एक्चुअल प्रैक्टिस में मटेरियल जो है उसका क्या रोल रहा है, क्या कार्य रहा है उसका? मेरे को लगता है, मतलब मेरा काम ही मटेरियल है, मटेरियल ही मेरा लैंग्वेज है, और मतलब मटेरियल के थ्रू ही मैं नरेट करता हूँ अपने वर्क को। मतलब उसके थ्रू ही मैं ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं होता है कि मैं इस मटेरियल में काम करने वाला हूँ या पेंटिंग करने वाला हूँ। मतलब मैं फ्री रहता हूँ, मतलब कौन से मीडियम में ज्यादा स्ट्रांगली इसको हम बोल सकते हैं, तो मैं उसमें ज्यादा करने का कोशिश करता हूँ। तो मटेरियल एक एक तरह से फंडामेंटल ही है मेरा प्रैक्टिस का। लेकिन जब आप टेराकोटा की बात करते हैं, टेराकोटा में काम करते हैं, तो ब्रिक में एक जो सैंड का जो ये रहता है, यानी उस टाइप का जो क्ले रहता है उसका प्रमाण ज्यादा होता है, और जो एक्चुअल हम टेराकोटा स्कल्पचर बनाते हैं उसमें वो कम होता है। तो तब आपको ये टेक्निकलिटी जब आपने जब ऑब्जर्व की एक्चुअल ब्रिक में और आपके अपने इसमें, तो तब आपने उसको कैसे बैलेंस, एक अपने काम में कैसे बैलेंस किया फिर? नहीं, मेरे को लगता था कि मेरे जो काम का जो रॉनेस है, जो मेरा मतलब मेरा एस्थेटिक्स ही वही है, मतलब मेरा मतलब प्लीजिंग एस्थेटिक्स नहीं चाहिए मेरे को। और इसके लिए मतलब जैसे ये ब्रिक किल का जो मैं क्ले डायरेक्ट यूज कर रहा था, या मैंने जो स्लीपर का काम किया था, मतलब तो वो आइडिया ही मटेरियल, क्योंकि वो 4-5 साल से मैं उसको देख रहा था, उस पे मैं चाह रहा था कि इसको कैसे रिएक्ट करना है। तो एक स्टेज आया, मेरे को लगता है कि वो स्लीपर को एज इट इज रखना उस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक यूज किया हुआ स्लीपर है, उनका वो मार्क है, मतलब वो स्ट्रगल है उसमें दिखता है। और जब जब हम बात करते हैं, मतलब वो क्योंकि उनके जो पैर हैं वो भी टेराकोटा की तरह सेंसलेस हो गए हैं, मतलब वो हीट पे काम करते हुए। तो मटेरियल को मैं इस तरीके से अप्रोच करता हूँ, तो काफी। इसी से एक सवाल जुड़ा हुआ है मेरा, ये है कि सी जनरल नैरेटिव ऑफ गुडी गुडीनेस is absent, I mean is observed in many artworks, art practices. बहुत ही अच्छा गुडी गुडीनेस आ जाता है, but you prefer to discard that गुडी गुडीनेस। वो जो गुडी गुडीनेस जो है वो बड़ा अच्छा मोहक वाला जो एक मोहरा जिसको कहते हैं, उसको आपने completely discard कर दिया है, और and you brought figurative language and material as an expressive project. What triggered such thought process? इस टाइप का थॉट प्रोसेस आपको कब ट्रिगर किया कि आपने जो एक फिगरेटिव लैंग्वेज और मटेरियल जो है उसको एक एक्सप्रेसिव प्रोजेक्ट के तरह आपने उसको लिया है? जैसे ये इसका भी वैसे, आई एम अनेबल टू क्रिएट सम प्लीजिंग एस्थेटिक्स, बाकी लोगों की तरह मुझे नहीं करना था। और मेरा जहां से मैं आता हूं और जिनके साथ मैं काम कर रहा था, वो मतलब जो जो एग्जिस्टिंग आर्ट वर्ल्ड है वैसा नहीं है, मतलब। और शायद वो मेरे प्रैक्टिस को ना भी एक्सेप्ट करे। तो मेरा मतलब मेरा जो एस्थेटिक्स है वो उस एस्थेटिक्स में बिलीव नहीं है जो कि एक्चुअल आर्ट वर्ल्ड का हो सकता है। मतलब अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, बट मैं कोशिश करता हूँ, मतलब अपना एक
इसमें काम करने का। How do you react when you face volatile question of representing a difference all the time? कि भाई मैं एक डिफरेंस रिप्रेजेंट करता हूँ, इस सवाल, ये जो वोलाटाइल क्वेश्चन है, जब इसको आप ये आपके ऊपर दागा जाता है या कहा जाता है, या अपने आप में जब ये सवाल उठ के आता है आपके मन में, तो आप इसको किस ढंग से फेस करते हैं? हाउ डू यू फेस दिस वोलाटाइल क्वेश्चन? First, I am not representing anyone. I am trying to understand the existing socio-political problem through my practice, who are examples of existing crisis in the society. और मैं रिवोल्यूशनरी की तरह देखता भी नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एज ए इंडिविजुअल मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ। मतलब हाँ, कुछ फर्क जरूर हुआ है, जैसे कि एक गैप, इतने सालों में एक गैप कम हुआ है। मतलब 7-8 साल में वो ब्रिक किल में जहाँ पे अलाउ नहीं करते थे, अब हम एक जगह पे बैठते हैं। जैसे अब ब्रिक किल वाले भी अब हेल्प करते हैं, जैसे हम बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए उनसे भी फंड लिया था हम लोगों ने। तो ये मतलब एक रिलेशन है, उस गैप को हमने कम किया है इस रिलेशन के थ्रू, ये इस तरीके। एक थोड़ा सा हम आपसे सुनना चाहेंगे कि जब आपने बच्चों के साथ काम किया, एक आर्ट वर्क क्रिएट करने के माध्यम से या कुछ टीचिंग के माध्यम से एक कोशिश की, तब आपका अनुभव और आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपके जो निरीक्षण, जो भी निरीक्षण है, वो कैसे रहे, किस प्रकार के रहे, आप वो साझा करेंगे हमारे साथ? कैन यू शेयर विद दैट दोस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद अस व्हेन यू हैड एंगेज, you were engaging with the children or for making some kind of an object? जब मैं, जैसे मैंने बताया, पहली बार 2015 में मैं विजिट किया था इस साइट पे, उस टाइम पे तो जैसे होता है कि ये प्रोजेक्ट है, काम करना है, वैसा है। लेकिन जब मैं इन्वॉल्व हुआ, जब समझा, तो मेरे को लगा ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, मतलब मेरे लिए प्रोजेक्ट नहीं है। और तो बच्चों का प्रोजेक्ट भी वैसा ही है। मतलब उस टाइम में, मतलब मेरे कुछ दोस्त थे, हम 2-3 लोग मिलके, कोई फंडिंग नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे जाके वर्कशॉप करते थे, क्योंकि मिट्टी का कुछ पैसा नहीं लगता था, वो वहां से इजीली अवेलेबल था। और कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ माइंड, मतलब मेरे लिए भी था कि मैं भी लेबर कॉलोनी में रहा धनबाद में, लेकिन मेरे लिए एक प्रिविलेज था कि टाटा का स्कूल था, मैं स्कूल में पढ़ा और निकल गया। वहां पे ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इस तरह का। तो वो एक कहीं ना कहीं ये भी था कि मतलब वो बच्चों के साथ कैसे इसको आगे कंटिन्यू करते हैं क्या। तो हम रेगुलरली ऐसे कुछ ऐसे प्लान कर रहे थे वर्कशॉप, जैसे कि हम लोग टॉय का वर्कशॉप किया, मतलब तो उनके लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि जिसको वो छुपा के रख रहे थे। मतलब वो क्ले का, मिट्टी का एक वैल्यू हो गया, मतलब वहां पे, मतलब उनको खेलने का एक, या वो छुपा के रख रहे थे इस तरीके से। जैसे ऐसे कई सारे ऐसे वर्कशॉप किए हम लोग। जैसे लाइन का, मतलब उनको लगता था कि बस ईंटा को पाइल करके रखना ही लाइन है, तो हम लोगों ने एक ब्रिक को ही उसको पेंट करके लाइन के थ्रू वो करने का कोशिश किया। मतलब कैसे थोड़ा एजुकेट कर सकते हैं, मतलब उसको चीज को और तरीके से उसका परसेप्शन को, जो एक जो बर्डन हो गया है मटेरियल, वो कैसे ब्रेक हो सकता है। तो वही हंसते खेलते, मतलब ऐसे ही एक स्टार्ट हुआ। और बीच बीच में कुछ फाउंडेशन से भी अलग अलग कुछ ग्रांट भी मिले, कुछ नहीं मिले ऐसे, बट कंटिन्यू 5-6 साल तो चल रहा है। Thank you. Over to John. Thank you, sir. Thank you, Professor Alone. Thank you, Birender, for such an insightful conversation about the detail about the work and the emotional journey. Arundhati, shall we take questions from the audience before we ask a few questions to them directly? Yeah, maybe we, John, if we start with a couple of questions ourselves, then the questions will start coming in. I can see Okay. 2 questions here. I cannot see. Yeah. Okay, so to Birender, I would like to ask, so you did this project during a very challenging time, which is that of lockdowns, when travel was restricted and the migrant workers' condition was also very precarious. So would you like to share some experience of having the interactions with the laborers during the very unprecedented
precarious times? मतलब लॉकडाउन के टाइम में तो विजिट करना नहीं हुआ, क्योंकि बट क्या हम लोग फोन पे टच पे थे। मतलब जैसे कि कोई भी नेचुरल क्लेमिटीज आता है, सबसे ज्यादा जो लोअर क्लास होता है वो ज्यादा सफर करता है, तो उनके लिए तो मतलब ऐसा ही कुछ नहीं था। और ये एक लॉकडाउन का मतलब वो काफी उनके लिए प्रॉब्लम था। तो उस टाइम में मतलब 2 साल तो मैं विजिट नहीं किया, और आईएफए का ये जो प्रोजेक्ट है, इसके हम लॉकडाउन के बाद जो पहला विजिट था इसी प्रोजेक्ट के थ्रू में गया। तो और वो काफी कई सारी स्टोरीज थी। मतलब बहुत लोग कुछ लोग चले गए, छोड़ के चले गए यहाँ से परमानेंटली ब्रेकिंग पे ऐसा। और मेरे लिए भी था जैसे 2 साल, क्योंकि जनरली मैं स्कल्पचर और इस तरह का काम कर रहा था कम्युनिटी बेस्ड। तो उस टाइम में मेरे प्रैक्टिस में भी चेंजेस आया। मैंने कभी ड्राइंग नहीं किया था, मैं चारकोल और ये कभी भी यूज नहीं किया था। उस टाइम में मैं जो भी मैंने जो इतने सालों का जो डेटा था उसको देखता था। मैं जो ड्राइंग स्टार्ट किया सब, ये जो चारकोल का ड्राइंग भी अभी हम देख रहे थे कुछ, वो उसका ही वहां से ही मैंने लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था। कुछ करने का था नहीं घर पे। वीरेंद्र, एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है, जो हम आर्ट वर्ल्ड में अभी देखते हैं कि आर्टिस्ट कम्युनिटीज के साथ में जाके काम करते हैं, उनका तो बन जाता है, बर्लिन चले जाते हैं, बट फिर उस कम्युनिटी से वो भी एक्चुअली एक्सप्लॉइट ही करते हैं कभी कभी, क्योंकि उनके स्टोरीज से उनका आर्टवर्क बन जाता है, लेकिन कम्युनिटीज को क्या मिलता है इससे? तो इसका जो ये है कि आर्टिस्ट के साथ जो संपर्क कम्युनिटीज का, रिलेशनशिप ये कम्युनिटीज का बनेंगे, उस किसके आधार पे बनेंगे? यहाँ ट्रस्ट कैसे पैदा होगा, कैसे ये दो कोलैबोरेट करेंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हमें कभी कभी हमें आईएफए में भी ऐसे प्रपोजल्स आते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं इस कम्युनिटी के साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन हम जब पूछते हैं आप कब से जानते हैं इनको, क्यों काम करना चाहते हैं, इसका कोई ठोस जवाब हमें नहीं मिलता। हमें लगता है कि अच्छा लग गया, इंटरेस्टिंग है, बस जाके काम करेंगे। और कभी कम्युनिटी वाले भी पूछते हैं कि हमको क्या मिलेगा और हम क्यों काम करें आपके साथ, हमारा तो वैसे भी सारा दिन चला जाता है कामकाज में, फिर हम आपके साथ भी क्यों बैठ के ये सब बातें करें? तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इतनों सालों से इनके साथ, एक साथ जो आप इनको जस्ट एक प्रोजेक्ट के बाद छोड़ नहीं दिए, इनके साथ आपका जो एक नाता बनता गया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मतलब ये कि मेरे लिए प्रोजेक्ट नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में जरूर था, मैं सोच रहा था काम करना है, बाद में मतलब कोई सपोर्ट मिले या ना मिले हम उसको कंटिन्यू करते रहे, या बच्चों का ही प्रोजेक्ट रहा। मतलब तो मेरे लिए मतलब एक, और वो जो हमारा गैप भी था मतलब वो वैसा नहीं था एक मतलब कोलैबोरेशन। वो तो एक फ्रेंड जैसे है मेरे, वो खुद शेयर करते हैं। मतलब जैसे लॉकडाउन में भी हम टच में थे, या जो हमारे से हो सकता है हम हेल्प कर रहे थे। और मतलब एक ये भी है, एज ए इंडिविजुअल मैं चेंज तो नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं मानता। मतलब थोड़े जरूर ये सब चेंजेस आए हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है। मतलब ये एक पूरा मूवमेंट का काम है। मतलब मैं तो एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी चिंगारी है, कहीं लगे तो कुछ हो सकता है। तो वैसे ही है मेरे लिए। तो मतलब जो हमारा मतलब एक जो मैंने बोला कि प्रोजेक्ट नहीं है कि, तो अब उनके लिए भी जैसे अब अगर मैं भी नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा ये बात। एक सवाल ये भी आता है कि अगर हम बात ही नहीं करेंगे इस पे तो फिर कौन बात करेगा? थैंक यू। जॉन, आप क्वेश्चंस लेना चाहेंगे? अभी यहाँ 2-3 क्वेश्चंस। Sure. There's a question from an anonymous attendee whose question is regarding the role of language, spoken language, which is common between you as the artist and the community. So were there new words and phrases, ideas that found new articulations in the shared language? So how did language play a role in your collaboration, and how did language change the project? मेरे को लगता है कि ऑफ कोर्स लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जब हम मिले थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट किया। मतलब वो अपनापन एक बात थी। मतलब और जरूर हम एक स्टेट से थे, और
कहीं ना कहीं मेरा बैकग्राउंड भी जब उनको पता चला तो वो खुद भी हेल्प करना चाहते थे। तो इसलिए मतलब वो एक्चुअल जो कोलैबोरेशन था वो मतलब एक फ्रेंड की तरह रहा। मतलब वो भी हेल्प करना चाहते थे मेरे को कि मैं सही से करूं, मतलब क्योंकि मैं उस स्टेट से था, उस लैंग्वेज के था, तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा रहा, लैंग्वेज का हेल्प तो जरूर रहा। There is a question from Nisha Premkumar Kavani who's asking how long did the project take? So as for the explorations project, it's for 6 months, whereas Birender's process had started way back from 2015. So And Birender, it continues, right? So he says it's not a project, it's a continuing work. John, there is a question here from Chinar. She has asked this here. Is there a system of advance in brick kilns? There is a big advance system in South India in the kilns that impact money relations greatly. ऐसा कुछ है वीरेंद्र? और चिनार शाह पूछ रही है कि एडवांस का कोई सिस्टम है ब्रिक किल्न्स में? जरूर, क्योंकि ब्रिक किल्न में जो बॉन्डेज लेबर का सिस्टम ही यही है कि वो थोड़ा सा एडवांस पेमेंट कर देंगे और आप 1-2 जनरेशन के लिए गए। क्योंकि मैं जिस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी वैसे ही है। मतलब करीब बहुत सारे ऐसे फैमिली से मिले में वो मतलब 2 जनरेशन से वहीं पे है। मतलब वो शादी करने के लिए लोन लिया या इस तरीके से लिया, फिर वो चुका नहीं पाए तो वो वही कंस्ट्रक्शन साइट पे ही है। मतलब ऐसे रहते हैं। तो ऐसा तो कई 2 फैमिली से मिला मैं। And we have a range of questions regarding the relationship between the artists and the community. From Abhaya Rajani, who's asking, how do you negotiate the line between forming interventions as a contemporary artist and embracing the existing work of workers as an observer? There's an anonymous question from Facebook, who's asking, we have seen the difference between artists and the communities they work with. The artists might still go to major festivals to showcase their work, which the communities cannot. So what do tell us about the relationship you formed with the people you work with? So Birender, how would you like to address these questions? ये तो सेम क्वेश्चन है अरुंधति का, जैसे हम बात कर रहे थे कि मतलब मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा काम ही यही है। मतलब और मतलब मेरा लैंग्वेज है, मतलब और मैं कुछ नहीं कर सकता ना इसमें। तो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म ही है। मतलब और मेरे लिए सरवाइव करने का भी यही है ना। मतलब यहाँ मधुश्री का 3 क्वेश्चन है। एक है, how do you see this work going forward? Do you see its nature change in the future in some way? दूसरा है कि to what level does support come from the brick kiln management? का क्या रोल है इसमें, वो कुछ करते हैं कि नहीं? Have you also faced any strong conflict in this work in terms of existing worker management relationship? 3, is it possible to share some of the children's work with us now? तो पहला ये कि आगे जाके कैसे आपको लगता है ये काम होगा। दूसरा मैनेजमेंट का रोल और मैनेजमेंट वर्कर का रिलेशनशिप के ऊपर इसका। और तीसरा बच्चों के साथ जो काम किया वो कुछ आप अभी शेयर कर पाएंगे कि नहीं? जो बच्चों का काम है वो आर्टरीच के साथ उनके वेबसाइट पे है, सुर्खी करके प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। सुर्खी, maybe we can just put the link if an IFA colleague of mine can put that link. It's on Artreach, is it? Surkhi project. SURKHEE. Okay. Yeah. हाँ, मिल गया मुझे, मैं कॉपी करती हूँ यहाँ पे। हाँ। तो जैसे मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट क्या, जैसे जब पहली बार जब विजिट किया तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो नहीं चाहते थे कि मैं विजिट करूं, उनके लिए मतलब प्रॉब्लम ही है। मतलब वो नहीं अलाउ करते हैं। मतलब थ्रेट करना, कौन से गाड़ी से आते हो, कहाँ से आते हो, कैसे आते हो। मतलब शुरुआत का जो था वो फेज ऐसा रहा जैसे मैं बोल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मतलब वो गैप नहीं है। मतलब अब वो गैप मतलब एक फ्रेंड्स की तरह हो गया। उनको भी मतलब ऐसा कि मतलब मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा क्रांतिकारी करने नहीं आया।
तो एक वो गैप तो जरूर कम हुआ है। फिर वो हमने वो बच्चों के लिए, जब वो कुछ नहीं जानते थे, वो बच्चों के लिए फंडिंग करते हैं हमारे स्कूल के लिए, उन लोग भी आके सपोर्ट करना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मतलब पहले से तो बहुत ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ धीरे धीरे तो कम हो रहा है, कुछ तो हुआ है मतलब इतने साल। There is a question, one more question from Nisha Premkumar Kavani, who's asking, do you face any difficulties from Indian authorities for showcasing such artworks, which is a blunt critique to the unequal system? जो इंडियन अथॉरिटी के अभी तो नहीं आया, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में जब मैं विजिट कर रहा था, क्योंकि वो एरिया ही पूरा 20 किलोमीटर के एरिया में सारा ब्रिक फैक्ट्री है, तो मतलब वो कैमरे लेके हम जाते थे ऐसा, तो उस टाइम में वो थोड़ा परेशान कर रहे थे, थ्रेट करते थे, वापस घर नहीं जा पाओगे ऐसा वैसा। लेकिन अब तो वो सब नहीं है, मतलब उनको वही मैं बोल रहा कि अब वो धीरे धीरे गैप कम हो गया मतलब। Have you asked this question, John? The Not helmets, yet. there is a question here, no? There is a question from an anonymous attendee who's asking, in your work, you have shown the workers wearing helmets, and you also put a helmet atop the kiln. But in the photo, we don't see the workers wearing helmets. So how do you respond to that? Sorry, I didn't understand the question. So an anonymous attendee is asking, in the drawings, the workers are wearing helmets, but in the photographs, there are no helmets. So why is it so? क्योंकि ड्राइंग में वो एक इमेजिनेशन था, कई सालों का वो था, और कोई एकदम जरूरी नहीं था मतलब कि मैं एकदम ब्रिक किल्न का ही वो ड्रॉ कर रहा था। चाइल्डहुड मेमोरीज भी था, क्योंकि मैं इमेजिन करके ड्राइंग कर रहा था, स्टूडियो में वो सब ड्राइंग कर रहा था, तो शायद ये इसलिए भी हो सकता है, मतलब वो डिफरेंस है। क्योंकि वो जो फोटोग्राफ्स है वो एक तरह से नेचर में डॉक्यूमेंट्री है, मतलब ड्राइंग एक बहुत एक इमेजिनेशन प्रोसेस में है। मेरे एक क्वेश्चन ये था वीरेंद्र, की यहाँ पे जैसे आपने बोला कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से काम का अलग अलग काम दिया जाता है, इस अलग अलग काम का वेजेस भी डिफरेंट होता है, राइट? तो कुछ कुछ काम का तो वो भी क्या कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से ज्यादा कम होता है, उसका कुछ हायरार्की है वैसे? और दूसरा मेरा ये सेम क्वेश्चन था जेंडर के ऊपर की यहाँ औरत और मर्द तो ऑब्वियसली हम जानते हैं हर जगह औरत को कम मिलता है, लेकिन काम के हिसाब से क्या वो एक ही काम करते हैं या वहां भी काम का भाग होता है कि ये औरत करते हैं और ये मर्द करते हैं, और बच्चे भी काम करते हैं कि नहीं? यहाँ पे मतलब जो वेजेस का बात है वो तो ऑफ कोर्स डिफरेंस है, क्योंकि जैसे जो झारखंड से जो माइग्रेट करके जो यूपी में आ रहे हैं, तो उनका एक तो लैंग्वेज का इशू है, वो लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, तो इजी है उनको एक्सप्लॉइट करना, और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको जो अभी मैं बोल रहा था कि बचपन से हम सुनते थे रांची लेबर रांची लेबर, बाद में ग्राउंड में मुझे पता चला रांची लेबर क्योंकि वो लोकल एरिया को जानते नहीं है, वो किसी को वो नहीं है, तो उनको वो कम पे करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा टफ काम उनका ही है, मतलब वो पूरा ब्रिक को लेके जाना, और उसमें और पेमेंट का है वहां पे कुछ इंडिविजुअल पेमेंट तो मिलता नहीं है, वो पूरे फैमिली को हायर करते हैं और जो फैमिली का हेड होता है उनको पे करते हैं उसमें, क्योंकि वो जितना ब्रिक बनाएंगे उतना उतना पैसा मिलता है, तो ऐसा होता है। तो सारा अलग अलग है, जैसे जो 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 झारखंड के जो लेबर है जो ब्रिक लेके जा रहे हैं, उनका टोकन के हिसाब से मिलता है, मतलब अगर वो एक बार ब्रिक एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं तो एक टोकन मिला, मतलब अगर वो 100 बार किए तो उनको 100 टोकन मिलेगा, वो 150 रुपए का होता है ऐसा, तो कुछ भी नहीं है, मतलब उसको वो कौड़ी ही बोलते हैं, मतलब और वो कौड़ी ही है तरीके से। अच्छा, और औरत और आदमी का भी अलग अलग काम होता है या उनको एक ही काम करते हैं यहाँ पे ज्यादातर? नहीं, ज्यादातर क्योंकि जो फायर वाला जो काम है, जो फायरिंग का काम करते हैं, उसमें सारे मेल हैं, मतलब और वो ज्यादातर प्रतापगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद वो है, क्योंकि उनको थोड़ा वो स्किल है, उनको वो टेम्परेचर पता है, कितने टेम्परेचर में ब्रिक को फायर करना है, क्योंकि पूरा जो दावेदार है
उनके ऊपर है। तो सबसे ज्यादा जो सैलरी होता है उनको ही होता है, और वो मेन होते हैं, वो 2 लोग। तो उनके पीछे आदमी हरदम एक रखे कि ये लोग भाग ना जाए, क्योंकि वो 2 बीच में छोड़ के भाग ना जाए, उनका बहुत कम लोग हैं और मिलते हैं। तो 2 आदमी बैठा के रखते हैं कि ये भाग ना जाए, मतलब कहीं पे हरदम निगरानी में रहेगा ऐसा। तो और आप आर्टिस्ट के हिसाब से जब जाते हैं हर साल, जैसे आप जाते थे 2015 से, तो सेम कम्युनिटी वापस आता है और घर जाता है फिर आता है, या वो भी ट्रैवल करते हैं कि तो आप ये 2015 से अभी तक जो काम किए हैं एक ही लोगों से किए हैं, एक ही फैमिली से, या वो भी बदलता रहता है आपका सीजन पे? नहीं, वो बदलते रहता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्योंकि कोई गारंटी भी नहीं रहता है कि एक सीजन काम किए तो इसी ब्रिक फैक्ट्री में आएंगे, वो दूसरे ब्रिक फैक्ट्री में भी जाते हैं। हाँ, जो बॉन्डेज लेबर है, जो एडवांस लेके बैठे हुए हैं, वो तो मतलब काफी टाइम से उसी जगह सेम ही है। हाँ, अच्छा। जैसे एक विनोद है जिसके साथ मैं पहली बार मिला था। वो झारखंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है। वो काफी टाइम से उसी जगह में है, और उससे काफी हम लोग को सपोर्ट भी मिलता है ये बच्चों को प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, तो उसको पता है, वो सबको मतलब चार्ज करके रखता है बच्चों को भेजना, ये सब मतलब हमारा मतलब एक तरीके से पूरा काम उनके थ्रू की, मतलब अपने बच्चों को लेके आना है इस तरीके से। तो कुछ लोग हैं जो काफी टाइम से है वहां पे। So, I have one question, if I may, for Professor Alone. Professor, you have been seeing Birender's work for some time now, and you spoke actually in the promo that we did. You spoke very beautifully about his aesthetics. I wanted to ask you. I have been noticing, and being in IFA is an advantage because we get to read so many different kinds of proposals, that a lot more artists are coming from working class backgrounds. I see this very strongly in the visual arts, and that is slowly, very slowly probably, but shifting the kind of work. And because you said so much about Birender's aesthetics, the kind of work that we are seeing around us, धीरे धीरे वो बदल रहा है. I wanted to hear a little bit from your experience of this, or your thoughts on this. And this coming from varied caste and work and region backgrounds, educational backgrounds. Many of them are first-time learners also. How do you think that is impacting and will impact the larger visual arts field within the country? Well, it's a very tough question, I must say. But nevertheless, I'll try to shorten the answer as much as possible. Yes, it is true that there are people who are coming from diverse background and coming from the working class and working caste backgrounds in India, and they are entering in the art school. Indeed, some of them are first generation learners in their families, and I must say, they dare to enter in the field of visual arts, despite knowing the fact that it is not going to give them immediate money or anything. Yeah. But they are there. And there are also set of people who are highly educated, like engineering or some kind of course, and then shifted to visual art practices through other means, and they have entered in the arena, and they have their different objectives. So, but one thing I must say, that all these people who are entering in the art practices and they have one important objective, that I would like to narrate my story, my experience. This is very, very fundamental. And they know that nobody is going to do that. It's very simple. Nobody is going to do that. Say, for example, I'll just give you one small example. When I curated the exhibition, so one of my teacher very promptly remarked, only you can do it. It is your responsibility. That's how he remarked. So the question is, like, what is your politics of representation? How do you really strategize yourself in order to represent what you really think is your experiences and your ways of world making, or your ways of entering into a realm of visuals that have a very strong narrative and that has some very, very important content that
challenges the meta narratives of the modernism. What I'm really impressed by these people, or rather I must say, I have a lot of ideas of generating constructive critique and everything. Lot of ideas was always there. Always I was looking for those alternatives and all those things, but I had very few examples. I had only one example, like Savi Savarkar. That's it. I had no any other examples. But over a period of time, there are so many, and it is their work which inspire me to write more, to talk more, and the most poignant thing is that all these people are thinking very differently. So they are not, the logic of market, the logic of art gallery does not really impact them. Rather, they are more free and willing to work with the galleries, absolutely no problems, but on their own terms. This la avant-garde, which is so far being guided by the galleries these days, I think these are the set of artists who wish to break that jinx and make a dent into these meta-narratives of this so-called global art, and also in the so-called high art practices. The whole, because the entire art production or the art practices have always been very transcendental. They take a very transcendental position. Many of these artists take a very transcendental position. And it is very comfortable position because you cannot question them. They claim it is my transcendental space and all those things. But these are the set of artists who are anti-transcendental. I must say. That is why I would like to use the word anti-sublime. Completely opposed to these kind of dynamics, and they are more earthy. They are the one who are representing the not just the society as such, but also presenting a constructive visual critique of the problem which the Indian society is facing these days. And they are, they wish to claim to the larger project of democracy, constitutional democracy. I think that is what really matters. Whereas many painters in India, they don't care. For them, constitution, you see, and as and when they are charged with some case or anything, that time they find, oh, there is a constitution, there is a basic fundamental right, freedom of expression, and then they will look for it. So this is how it goes. So the politics of making really enters into your realm, in your thought process. It gets deep down, and there are people, there are youngsters who wish to be different. Irrespective their caste and communities and the class, and that really matters a lot. Thank you. Thanks, Professor. We have 3 more questions actually. 2 in the Q&A box. John, you will take. I'll take the one that's outside in the chat. Sure. So question from Dibesh Pandya is, he's saying that it's a beautiful work and great presentation. The question to Birender is, how has the West reacted to your work? What kind of conversations you have had with the Western art world, both peers and curators? So Birender, would you like to respond about your interaction with Kader Attia and others? Of course, वेस्ट में मतलब ये आइडिया नहीं है उनको, मतलब कि अभी भी, मतलब क्योंकि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ट्राइबल और सारा ये कॉलोनियल से आता है, बट अभी भी वो इतने सालों के बाद है, मतलब चल रहा है. तो कुछ ऐसा ही था, मतलब उनको नहीं है आइडिया, मतलब अभी ग्राउंड में क्या, इसलिए भी लगता है कि हमारे को इम्पोर्टेंट है इस पे बात करना, मतलब रेज करना क्वेश्चन अवेयरनेस के लिए. 2 क्वेश्चन है, एक फेसबुक से और एक आदिति ने पूछी है कि उनको थोड़ा सा वर्कर्स के हेल्थ के बारे में जानना है, हेल्थ और सेफ्टी के बारे में, कि कितना उनको सपोर्ट मिलता है ओनर से अगर वो उनका तबीयत खराब हो जाए और दे आर अफेक्टेड ड्यूरिंग वर्क, और कास्ट और जेंडर के ऊपर भी ये हेल्थ और सेफ्टी का, क्योंकि उनको अलग अलग काम दिया जाता है,
तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली ओवरऑल थोड़ा हेल्थ के बारे में, हेल्थ और सेफ्टी के बारे में अगर आप कहें। मतलब ब्रिक किल्न तो यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, और तो हेल्थ का तो कुछ, और ना ही कोई एक भी सेफ्टी का कुछ होता है, मतलब किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो ये तो एकदम क्लियर है, मतलब मेरे रिसर्च में मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा जो एक बेसिक सपोर्ट मिलता है, नहीं। वो बस एक सैलरी है, वो डेली वेज वर्कर है, तो वो भी वीक के। C2 का नहीं होता था क्या ब्रिक, मिर्जापुर ये एरिया में नहीं होता था C2 का ट्रेड यूनियन पहले, ब्रिक वर्कर्स का? आई डोंट नो, आई हैड हर्ड। नहीं, there was never a brick union worker in the entire country. Okay. Because it is a contractual job and it is Yeah. confined only to certain season. Because during the rainy season, wherever there is a rainy season, the brick manufacturing is completely stopped. It's only areas where there is a regular manufacturing kind of a things where the bricks are produced under the shelter, under the industrial shelter. Only those places the manufacturing would continue, but otherwise not. Even then, it would be at a very less scale, and the employees, the laborers were not engaged in a high number, and the laborers would go back to their villages or their own houses once the rainy season begins. So that has been a pattern all over India. Okay. सो बीरेंद्र, आप वो कह रहे थे हेल्थ के बारे में कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता ओनर्स का? नहीं, कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि ये खुद ही वो बोलते हैं ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मतलब कुछ यूनियन नहीं है तो कुछ होगा भी नहीं। और जनरली इसलिए ब्रिक किल में बहुत एक्सीडेंट भी बहुत होता है, मतलब कितने लोगों से, मतलब ये इतने सालों में मैं देखा, बट कुछ नहीं होता है। There is one question from Kundan Kumar, who's asking, most of your work is project based, so how do you get money for survival? And what do you do to avoid repetition in your work? So Birender, would you like to respond to that? सरवाइव के लिए ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट बेस है, तो IFA जैसे ग्रांट और इस पे डिपेंड अप्लाई करता हूँ, और मैं जॉब भी करता हूँ। And yeah, you can also mention that you are doing university job of teaching. यूनिवर्सिटी जॉब, पार्ट टाइम जॉब, या and as for repetition in work, your work is ongoing, so it's not so much about repetition. What do you do to avoid repetition in work? हाँ, जैसे क्योंकि जैसे ये दुर्गा का था, ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, तो मतलब ये जो, तो जैसे बच्चों का जैसे बीच में नहीं काम कर रहा था मैं, फिर तो इस तरीके से जैसे पहले जो बेसिक्स था कि जैसे हम थंब प्रिंट को लेके काम कर रहे थे, एक जो आधार कार्ड का ग्राउंड में उनका क्या है, उस तरह का रिसर्च था। तो मैं जितना इन्वॉल्व होते हैं उतना आप समझते हैं करीब से, तो मेरे को नहीं लगता है कि रिपीटेशन की तरफ जाएगा। Let me add, to previous question. Many of these artists, even in the earlier generation also, they could engage with their works precisely because they had some job. And through employment, then they started their working, started producing works. Some people remain in the field of teaching, some people left and they went on their own. So in a similar manner, many of these young artists, they are working in any manner. I mean, can you imagine? I mean, they are willing to do any kind of a job, and they are doing job for their survival. And through that mechanism, they are also producing their artworks. So it's a very mixed kind of a situation, very difficult, very hard. But indeed, they are surviving on it, and they are producing fabulous works today. And they have maintained that productive vibrancy, I must say. True, Professor Alone, we used to say in Kolkata that group theatre survives on public sector bank jobs.
Everybody is a SBI or UCO Bank, employee or some other government sector, like the entire sport thing survives on probably railways. Yes. So that's many true. jobs, Except cricket. Except cricket. They don't need jobs, they have advertising money. Dhoni is the only exception, but otherwise, Dhoni is the the entire correct. Indian sport is surviving on railways. Yeah, true. So is there any more questions, John? I can't see it. No, there are none. Yeah. Any last comments, Professor Alone, if you would like to, before we close, and Birender, if there's anything you would like to say? Birender first. Direct material. Achha, there is one more question. Asta Gandhi is saying very interesting presentation and insightful discussion. Congratulating IFA Birender and Professor Alone. Asta Gandhi. Achha, there is a question for us. John Deepesh Pandya, does IFA work with Indian heritage artists based outside of India? Unfortunately, we are a public charitable trust and we can only implement projects with project coordinators who are Indian nationals and living in India, who are Indian nationals. You may be teaching somewhere, but you have to be an Indian national. And Birendra, आपने कुछ direct material को use किया है अपने works में for representing the workers and the place. Yeah. So. हाँ, वो स्लीपर वाला काम मतलब डायरेक्ट वो यूज किया हुआ स्लीपर था, उसको मैंने यूज किया है. Yeah. Okay, so John, you want to end the evening? Sure. So before we conclude, there are two announcements. One is that our next project showcase will be in February 2023. So dates will be announced very soon through social media. So please follow IFA on social media. You can find the links to IFA social media in the chat box. And another announcement is requests for proposals are out now for the Archives and Museums program. So last date for applying for IFA Bastion Banglaw Creative Project, which is in Kochi, is on February 10th. And the last date for applying for IFA Bihar Museum Creative and Scholarly Projects is on February 20th. So for more details, please write to Program Officer Ritika Mishra. Her email ID is ritika@indiaifa.org. And finally, please join me in thanking Professor YS Alone and Birender Yadav for such a lively discussion. And thank you, Arundhati, for such super fast translation. And on behalf of IFA, I thank all of you for joining us today evening. And thank you and see you for the next IFA event. Yeah, and if anybody's missed this evening, we have recorded it. So it's going to go up on YouTube. Of course, on Facebook, you can go and watch it anytime. So please do invite your friends who missed it today to join us and listen to the recording of this. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.